अस्सलाम वालेकुम सर। All right, so our next chapter is project management. Okay, now before we talk about project management, we need to understand what is a project. So let's see a specific and temporary activity with a starting and ending date, clear goals, defined responsibilities, and a budget. इसका मतलब है कि a project can be any activity, but it has to be temporary. It cannot be permanent. Like for example, a business is going to launch a new product, so it is a project. हम कहते भी हैं बात कर यार मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ. So there is an activity there where you are involved, right? But that will be temporary. Sooner or later, it will come to an end. Why? Because all projects they have their starting date and they have their ending date as well. When they have their starting and ending date, how can they be permanent, right? They will be temporary. Okay, and why starting and ending date is there? So that you can see whether the people responsible for that project they are able to complete the project in the right time or not. Okay, to see their efficiency, right? Okay, and define the responsibility, clear goals. Now, what is the purpose of that project? Okay, so there has to be a clear goal. Okay, goal could be, for example, you are running a construction business and you actually get a request from the customer to build a house for that person. Obviously, now you will be building that house, but it must match customer's requirement. It's not about completing the project at the right time only. It's about completing the project exactly according to the requirements of the customer in all respects, right? So clear goal needs to be there so that you will be while doing that project, everybody will be focused and they know that this would be their contribution to achieve that goal. Now define responsibility, and obviously for a project there might be a team of members who would be handling that project. So responsibilities will be shared as well. Okay, and so that later on the people who are responsible for a particular part of that project they can be held responsible if it is found out that the project actually um, gets delayed because of that particular part of the project. So obviously that responsible person for that part will be called, and then obviously
questions can be asked. So responsibilities and like for example, let's in just a minute ये कुछ चीजें मेरे सामने आ रही हैं. Yes, and a budget. Yes, budget you understand. Budget is the amount which is set aside for a particular cause. जैसे हम बजट कहते हैं, जैसे यार मैं मोबाइल लेने जा रहा हूँ, तो किसी ने आपको कहा यार ये वाला मोबाइल ले ले, रेडमी यार इश्तेहार बड़ा आ रहा है रेडमी का, ये ले लो. कितने का जी? और जी 40,000 का है, 45,000 का है. तो आपने आगे से क्या कहा जी? बजट नहीं है. इसका मतलब है you do not have enough money to buy that because the money you set aside that is actually below than that, the amount you set aside, right? Similarly, for a project, there needs to be a certain amount which is allocated for a particular project, because if let's say there is no budget, so there might be a chance of overspending. आपने कहा जी मशीन लगाओ, वर्कर रखो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, वर्कर आपने अन्य वहां रख लिए और प्रोजेक्ट आपने टाइम पे पूरा कर लिया. अब आपको लगेगा यार टाइम पे पूरा भी हुआ है और क्वालिटी भी अप टू द मार्क है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम. यू एक्चुअली ओवर स्पेंड और यू डिड नॉट रियलाइज दैट. क्यों भाई? बजट आपने एलोकेट ही कोई नहीं किया हुआ था, तो उसमें तो एवरी पॉसिबिलिटी कि आप शायद ज्यादा स्पेंड कर ले आपने वर्कर. तो एक बजट कंस्ट्रेंट होना चाहिए. A certain amount is allocated for a project, and now the people responsible, they will be using that budget to complete the project in all respects. So this is how it is done, and this will show the efficiency of completing a project. यदि इतनी अमाउंट थी और इसी अमाउंट के अंदर रहते रहते इन्होंने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, क्योंकि अगर अमाउंट आप बढ़ाना शुरू कर दें फिर तो कोई भी प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, तो उसमें एफिशिएंसी तो कहीं से भी नहीं आती ना, आ ही नहीं सकती. तो ये एक चीज है. आप मैंने अभी मोबाइल की बात की है, तो लेट्स से यू गो टू बाय मोबाइल एंड यू हैव अ सर्टेन अमाउंट, राइट? तो आप एक दुकान पे जाओगे, दूसरी दुकान पे जाओगे, नेगोशिएट करोगे, यू विल फाइंड द मोस्ट सूटेबल सेल फोन विच इज इन योर बजट, राइट? लेकिन अगर बजट ही नहीं, वो जो मिल गया, तो फिर आप तो कोई भी मोबाइल उठा के ले आए, तो उसमें आपकी एफिशिएंसी कैसे चेक हुई कि आपने किस तरह मैनेज किया इस परचेज की एक्टिविटी को विद इन बाय कीपिंग योरसेल्फ विद इन दैट बजट कंस्ट्रेंट. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में पैसे तो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन पैसे अन्य बात उस बजट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते ना. Alright, now for example, a project could be construction of a factory. You are going to open another factory, installing new machinery because your old machinery is worn out and now you want to replace it with a new one. This is also a project. Fine. अच्छा, इसकी स्टार्टिंग टाइम होगा, इसका एंडिंग डेट भी होगा, इसके गोल भी होगा, राइट? Now we'll talk about project management. So now we understand that people who are responsible to complete the project, they will they will be keeping an eye on starting date, ending date, the budget, and the goals, right? So if they are actually completing the project within the time frame given, all the goals which were set earlier, they were achieved by the people responsible. So we'll say that this is a good project management. So project management actually involves use of resources. You might have a building, you might have workers, and you have to manage them well to complete your project within the time frame given. And it should be within your budget. That is very modern, no? You know that. Because if you exceed that budget, so it can be said that project management was not good, right? So you have to um, keep yourself in that budget, and all goals must be achieved as well. Okay. All right. So now let's see, using modern management techniques to carry out and complete a project from start to finish. और किस लिए? In order to achieve pre-set targets of कौन से गोल हो सकती हैं? क्वालिटी, टाइम, कॉस्ट. ठीक है, कॉस्ट का ताल्लुक तो हो गया ना जी आपके बजट के साथ. ठीक है, एक तो ये बजट भाई जितना है उस हिसाब से खर्चा करना ना. दूसरा, वट एवर प्राइस यू आर चार्जिंग फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द कस्टमर, अगर ऐसा है
तो फिर आपने कॉस्ट भी तो मेंटेन करनी है ना एक सर्टेन लेवल तक, अदरवाइज आप जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो तो चेंज नहीं हो सकती। वंस यू हैव गिवन अ प्राइस टू द कस्टमर, नाउ इट कैन नॉट बी चेंज। तो वो भी आपको फिर मेंटेन करना है ताकि एनफ प्रॉफिट आप कमा सके, और क्वालिटी तो इंपॉर्टेंट है ही है, अदरवाइज कस्टमर्स वोंट बाय दैट। या आप जो अपने अगर फैक्ट्री लगा रहे हैं नई, या आप नई मशीनरी रिप्लेस कर रहे हैं, तो अगर वो राइट ऑर्डर में इंस्टॉल नहीं होती तो इट माइट डिस्टर्ब द प्रोडक्शन प्रोसेस, पॉसिबिलिटी है ना ये। सो इट माइट हैम्पर इन प्रोड्यूसिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ओके, देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिक्वायर्स सर्टेन थिंग्स टू बी मैनेज्ड। हम वैसे बात कर चुके हैं इस पे, मैं फिर भी आपको सर एक दिखा सेकंड के देता लिए हूँ। पिछली स्लाइड करेंगे प्लीज। श्योर 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 जी। सर एक क्वेश्चन था। जी बोलें जरूर। सर आपने कहा है कि प्रोजेक्ट जो है टेम्परेरी होगा, मगर उसका जो है रिजल्ट होगा वो भी टेम्परेरी होगा कि वो परमानेंट ही होगा? नहीं नहीं, रिजल्ट जो है आपका प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटी थी वो आपकी टेम्परेरी थी। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, तो अब तो आप कंटिन्यू, जैसे मैं बता रही, ये डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने एक ऑर्डर लिया अपने कस्टमर से फॉर मैन्युफैक्चरिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ फर्नीचर, ये आपके लिए एक प्रोजेक्ट है। अब आपने स्टार्ट किया तो एक टाइम पे तो प्रोजेक्ट आपने फिनिश करना है ना, वो कर लिया। अब आपने कस्टमर को वो चीजें दे दी, दैट्स इट, खत्म हो गया। अच्छा, ये तो है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ये बात बनती है कि आप अपने फैक्ट्री के लिए, अपने बिजनेस के लिए कुछ एक्टिविटी शुरू की हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कोई नई ब्रांच खोल रहे हैं, आप कोई नई इक्विपमेंट बाय करने लगे हैं। तो जब आपने वो बाय किया, कर लिया, फाइनली इंस्टॉल भी कर लिया, तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। हाँ, उसके बेनिफिट तो वो वाइड रेंजिंग है ना, वो तो लॉन्ग रन में भी आपको बेनिफिट होता रहेगा। ठीक है जी शादी। जी सर, थैंक यू। ऑलराइट, और ये बी केयरफुल, आगे चीजें थोड़ी सी आपको समझनी होंगी क्योंकि आगे डायग्राम्स आएंगे, मैंने आपको बताया था। ओके, शायद हम आज की क्लास में वो डायग्राम ना करें और वो अगली क्लास में हम इस चैप्टर को इंशाल्लाह खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, या फिर एक और क्लास लग जाएगी, क्योंकि मुझे आपको इस पे असाइनमेंट जरूर देनी है ताकि आप घर में प्रैक्टिस करें सवालों की। तो गुड टू सी के जो है ना स्टूडेंट्स मेजोरिटी वो मौजूद है क्लास के अंदर, तो दैट्स गुड। ओके, आगे चलते हैं। थिंग्स कौन सी हैं जी? पहले रिसोर्सेज, ऑब्वियसली टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट यू रिक्वायर रिसोर्सेज, यू माइट रिक्वायर अ बिल्डिंग, लैंड, लेबर, राइट, people, equipment, material, etc. You require time, you know that स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम है, आपको उसी में पूरा करना है ना, तो टाइम इज अ रिसोर्स एक्चुअली एज वेल। लेकिन चलिए टाइम को हम अलग से रख लेते हैं। टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ होल प्रोजेक्ट। अच्छा, अब आप कैसे देते हैं टाइम कस्टमर को? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग की, तो आप पहले फर्नीचर मैन्युफैक्चर करते हैं, असेंबलिंग होती है, फिर उसकी पॉलिशिंग होती है, ठीक है, उसके बाद कोई पोशिश वगैरह होती है, वो करते हैं। तो देर आर वेरियस एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन दैट प्रोजेक्ट। So what do you do? Because in order to manage the project well, so that you will complete it within the time frame given, you allocate time for each activity. आपको मैंने बताया था ना, जैसे मैं अगर एग्जांपल देता हूँ कि आपके पेपर में देर आर 5 क्वेश्चन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट इट इन 1 आवर, राइट। अच्छा, अब आपने सवाल करना शुरू किए हैं और आपको ना 4.5 घंटे के बाद पता चला कि यार मेरे तो 2 सवाल रहते हैं, तो अब नथिंग कैन हैपन, क्योंकि आपने वो 1 घंटे को ध्यान में रखा हुआ था और उसके हिसाब से काम कर रहे थे। अच्छा, अब अगर आप ऐसे करते कि डिवाइड कर लेते कि यार अगर 5 क्वेश्चन है और 1 घंटे में करने हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे पास टाइम कम है। मेरे पास जो है वो एक क्वेश्चन को करने के लिए कितना टाइम है बोला? 12 मिनट। मैंने क्या किया, हर क्वेश्चन को टाइम एलोकेट कर दिया, 12 मिनट से आई वोंट एक्सीड। और अगर मैं 12 मिनट से ऊपर जाऊंगा 1 मिनट भी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं 1 मिनट कम यूज करूंगा। सो इन दैट वे यू विल फाइंड नो प्रॉब्लम इन कंप्लीटिंग ऑल 5 क्वेश्चन इन 1 आवर्स टाइम। तो ये भी एक किस्म का प्रोजेक्ट आप समझ रहे। इसी तरह
जब प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट दे आर आइडेंटिफाइड फर्स्ट। अच्छा, जब आपने आइडेंटिफाई कर ली तो उसके बाद यू एलोकेट टाइम टू ईच एक्टिविटी, ताकि जब हर एक्टिविटी हो रही हो आपको पता चले कि क्या आप इधर यू आर राइट ऑन टारगेट इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये एक्टिविटी डिले तो नहीं हो रही, क्योंकि इन द एंड अगर आप देखेंगे यार एक्टिविटीज अभी काम तो आधा भी नहीं हुआ और दिन एक रह गया, फिर ये होगा। लेकिन इफ यू कीप ऑन ऑब्जर्विंग द एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द टाइम यू एलोकेटेड फॉर ईच एक्टिविटी, तो आपको प्रॉब्लम। ओके, ऑल राइट। तो इसीलिए उसमें फिर आपको बेटर मैनेज करने के लिए कि एक एक्टिविटी थोड़ी सी डिले हो गई है तो आप अगली एक्टिविटी को यू विल पेस इट अप, यार एक दिन ज़्यादा लगी है, अगली एक्टिविटी मैंने एक दिन पहले करनी है, ताकि टाइम जो है ना वो वही रहे जो मैनेज करना आपने। तो देन इट बिकम्स ईजियर टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट विद इन द टाइम फ्रेम। अच्छा, फिर आया मनी। तो मनी तो आपको पता है इन्वॉल्व है, तो बजट इन्वॉल्व है तो मनी तो होगा। तो ये भी आपका एक कंस्ट्रेंट है कि यू कैन यूज money to a certain extent. Project must be kept to budget with an expected profit. खाली आपने एक बजट तक आप पैसे रखेंगे तभी प्रॉफिट होगा ना। इफ यू एक्सीड द अमाउंट ऑफ बजट, इसका मतलब है आपने खर्चे ज्यादा कर दिए, और खर्चे ज्यादा हो गए तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई, और कॉस्ट बढ़ने से ऑब्वियसली बात है, अगर इफ यू आर सेलिंग दैट प्रोजेक्ट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया फर्नीचर मैन्युफैक्चरर या कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग हाउस, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि आप कस्टमर से एक प्राइस आपने पहले कोट कर दी है कि जी इतने पैसे लगेंगे, इतने देना है, कस्टमर ने गो हेड का सिग्नल दे दिया है। तो अब अगर फर्ज किया ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट यू एक्चुअली फील के कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मैनेज द प्रोजेक्ट वेल, तो फिर आप कस्टमर से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, तो आपका प्रॉफिट ही फिर कम हो जाएगा। अच्छा, देन स्कोप अगर हम देख लें तो मतलब वही कि आप डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ना बना देते हैं, डिटर्मिनिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट गोल्स डिलिवरेबल्स टास्क्स कॉस्ट एंड डेडलाइन, मतलब आप इसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। स्कोप का मतलब है कि आप जब इन तमाम चीजों को डॉक्यूमेंट कर लेते हैं तो फिर आप किसी भी पोर्शन या किसी भी प्रोजेक्ट के पोर्शन या एक्टिविटी के पोर्शन को देख सकते हैं कि भाई मॉनिटर कर सकते हैं कि फिलहाल क्या पोजीशन है और हमने क्या प्लान किया था, क्योंकि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आप प्लान करते हैं। अच्छा, अब की एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट तो मैनेजमेंट एक जरा देख सेकंड लें। डिसाइड कर लें। जी आगे चले जाएं। हाँ जी, रबिया, ओके, थैंक यू ऑल सर। राइट। अच्छा, और आपको बता रहा हूँ ये आपने अच्छे से करना है चैप्टर, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अच्छा अभी वैसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो भी आने वाला है। अच्छा, की एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वही आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, जारी बात है कि ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया किस बेसिस पे, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो बजट से मैच करती हो इन लाइन हो, एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी यू वांट टू हैव। तो ये सब इसी में आ रहा है ऑब्जेक्टिव में। अच्छा, किसी का ना माइक माइक खुला हुआ है, प्लीज जस्ट अनम्यूटेड। सॉरी सर। ओके, ऑल राइट। तो डिवाइडिंग द प्रोजेक्ट इनटू मैनेजेबल टास्क, आपको मैंने बताया था कि आप कभी भी प्रोजेक्ट विदाउट आइडेंटिफाइंग देयर मेन एक्टिविटीज आप स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको हर टास्क और एक्टिविटी को टाइम एलोकेट करना है सो दैट यू कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द टाइम फ्रेम गिवन। रिमेंबर, तो आप डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा जी, पहले हम लकड़ी लेके आएंगे, अच्छा फिर लकड़ी को हम असेंबल करेंगे, फिर हम इसको पॉलिश करेंगे, फिर और फिनिशिंग करेंगे या कोशिश करेंगे, जो भी है। तो ये एक्टिविटीज है ना बीच में, हर एक में होती है। आप हाउस कंस्ट्रक्शन को ले लें कि पहले जी हम डिगिंग करेंगे, फिर वील एक्चुअली गेट द बिल्डिंग ब्लॉक्स,
then we'll start building it. ठीक है, फिर ऑब्वियसली बात है लेंटर डलेगा वगैरह वगैरह, ठीक है ना, आपको पता है। फिर कंप्लीट होके बिल्डिंग, फिर ऑब्वियसली वुड वर्क विल बी देयर, फ्लोर्स विल बी मेड, ये एक्टिविटीज हैं डिफरेंट। एंड फिर आपका वो हाउस कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट इंस्टॉलिंग न्यू मशीनरी, तो उसमें भी पहले यही है, पहले आप डिस्कार्ड करेंगे पुरानी मशीनरी, नई मशीनरी ऑर्डर करेंगे, फिर नई मशीनरी के लिए स्पेस को आप आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे इंस्टॉल करनी है, फिर आप मशीनरी को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप उस मशीन को टेस्ट रन करेंगे कि भाई सही चल रही है, एम ही तो नहीं एक्चुअल प्रोडक्शन शुरू कर देनी वहाँ पर। उसके बाद फिर आप वर्कर्स को ट्रेन करेंगे इन दैट न्यू मशीनरी, और इस तरह से मतलब ये भी एक्टिविटीज हमें नजर आ रही हैं। और मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार एक्टिविटीज, क्योंकि एक्टिविटीज आपको पता होनी चाहिए है, आगे यही आना है। पेपर में आपको ये एक्टिविटीज दी होंगी एक प्रोजेक्ट की, और आपने फिर उस पर क्वेश्चन का आंसर देना होगा। वो मैं बताता हूँ कैसे होगा। अच्छा एक बात और, अभी अगर सेशन एक्सपायर होता है ना, आई गेस शायद 3:10 पे हो जाए या 15 पे हो जाए, तो अच्छा चलें देखते हैं, जब होने लगेगा तो फिर बात करेंगे इस पे। अच्छा फिर ये हो गया, तो टाइम लिमिट्स आप चेक कर सकते हैं अगर एक्टिविटी आपने आइडेंटिफाई कर ली है। टास्क एवरी स्टेज पे आप देखेंगे हर एक्टिविटी अब कहाँ पहुंची हुई है। असाइनिंग रोल्स टू ईच मेंबर, जो कि उस पर्टिकुलर टास्क या एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, तो उसको आपने बता दिया आपका काम है जी। जैसे कि अगर मैं हाउस कंस्ट्रक्शन की बात करूं, तो ऑब्वियसली लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ ब्रिक्स, सैंड, मड, ये तो जो रॉ लेबर है उसका काम है ना, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड बिल्डिंग और इरेक्टिंग वॉल्स, ये आपको पता है कि मेसन का काम होता है, मिस्त्री जिसे बोलते हैं, ये उसका काम है, ये वो करेगा। अंदर जब घर में वुड वर्क होना है तो वो ऑब्वियसली बात है कारपेंटर का काम। वॉशरूम बनने हैं तो वो फिर सैनिटरी का काम है, ऑब्वियसली बात है, तो प्लम्बर बुलाएंगे ऑब्वियसली। तो दिस इज हाउ you assign roles to each member. Control over quality issues and risks, yes. And you need to control, if there are some quality issues coming in, you need to control them. Like you need to put the activity on the same track, कि quality compromise now. और risks किस सेंस में, क्वालिटी के बेसिस पे भी है, लेकिन कॉस्ट इंक्रीज ना हो जाए आपकी, वो डैमेज ना हो जाए प्रोडक्ट, वो भी आ जाता है इसमें। और राइट नाउ प्रोजेक्ट फेलियर की कॉन्सिक्वेंस क्या है। अब फेलियर का मतलब क्या है, प्रोजेक्ट फेलियर का मतलब होता क्या है, फेलियर का मतलब है प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीटेड एट द राइट टाइम, प्रोजेक्ट इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, नई मशीनरी इंस्टॉल की है लेकिन वो सही फंक्शन नहीं कर रही, हाउस बना के दिया कस्टमर को बट कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड, तो प्रोजेक्ट या तो कंप्लीट ही ना हो, ठीक है, या फिर प्रोजेक्ट जो है वो अप टू द मार्क ना हो। इन दोनों को हम कहते हैं प्रोजेक्ट फेलियर। अदरवाइज अगर आपकी कॉस्ट बढ़ रही है तो ये कोई फेलियर नहीं है। भाई कॉस्ट बढ़ रही है तो प्रोजेक्ट तो पूरा कर लिया ना, वो बाद में देखेंगे कि कॉस्ट ज्यादा क्यों हुई है, लेकिन फेलियर ये कि आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं किया, या वो उस लेवल का है ही नहीं, कस्टमर ने लेने से इनकार कर दिया, या आप उसको मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकते, नई मशीनरी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके ऑलराइट, तो कौन सी प्रोजेक्ट फेलियर का हम देख लें। एक, पेनल्टी पेमेंट्स पेड टू कस्टमर्स, कि आपको एक ही काम करना पड़ता है कॉन्सिक्वेंस का, कि आपको कस्टमर ऑब्वियसली इफ कस्टमर इज नॉट हैप्पी, तो यू हैव लाइक, हैप्पी क्यों नहीं है, आपने डेडलाइन मीट नहीं की, ये भी फेलियर ही है। डेडलाइन मीट नहीं की तो आपको कस्टमर को कंपनसेट करना पड़ेगा कि भाई आप चले कम पैसे दे दो, क्योंकि आपका काम टाइम पर नहीं हुआ, तो पेनल्टी जो है वो इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा। बैड पब्लिसिटी, वो जो कस्टमर है जो कि राइट टाइम पर अपनी प्रोजेक्ट उसको नहीं मिलता, या वो अप टू द मार्क नहीं होता, दैट कस्टमर कैन एक्चुअली टेल 10 other people about it. Do not enter into a contract with that business because they are not able to fulfill their promises. तो ये हो सकता है, उससे लॉस ऑफ सेल हो सकती है, लॉस ऑफ कस्टमर्स हो सकते हैं, ओके, लॉस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी, यानी कि वो कस्टमर्स हु वर इन द पाइपलाइन एंड दे वर विलिंग टू एक्चुअली हैव अ कॉन्ट्रैक्ट,
that or project done with that particular business, वो भी कहेंगे भाई अब नहीं करना, ये तो बिजनेस ठीक नहीं है। इसी तरह अच्छा ये हो गया डन। अब आए कॉजेज। अच्छा हमने कॉन्सिक्वेंसेज पढ़ लिया ना कि अगर प्रोजेक्ट फेल होगा तो कि अगर प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं होता, डेडलाइन मीट नहीं कर रहा, क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है, यही है ना, या प्रोजेक्ट होता ही नहीं, फंस गया काम। अच्छा कॉजेज क्या है जी, एक देखें, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज। आपके पास जो रिसोर्सेज थे इन टर्म्स ऑफ मशीनरी या लैंड या लेबर वो उतने थे नहीं, और टाइम पे जब आपने रिसोर्सेज बढ़ाने की कोशिश की, सो यू आर नॉट एबल टू डू इट। तो फिर प्रोजेक्ट तो टाइम पे नहीं होगा ना, देन यू हैव टू वेट फॉर अदर रिसोर्सेज टू कम इन, और फिर आप प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे ना। सो ऑब्वियसली देयर विल बी अ हॉल्ट इन द प्रोजेक्ट, तो उससे फिर टाइम पे नहीं होगी ना कंप्लीशन। सीनियर मैनेजमेंट नॉट इन्वॉल्व, क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट जो है दे हैव प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस of completing projects, so they need to be informed about it so that they can find solutions if they feel according to wisdom and expertise that this project is going to be delayed in the future because of a certain reason. So they need to tackle it right now. Like for example, top management or the senior management feels that there is a resentment among the workers about their working conditions, okay, right now. So senior management can predict that in the future the workers can call on a strike. They may leave the business, so resulting in not completing the project. So senior management क्योंकि वो उनका विजन होता है and they can anticipate that as well. तो जो junior management और lower level management होती है, they might not be able to anticipate that in that way. तो वो eventually फिर strike हो जाती है और फिर आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। Poor planning again cost anything like um, आपने ये देखा ही नहीं कि आगे फॉर एग्जांपल you know these days the opposition is protesting against the government. So if let's say it paces up and now there are lots of processions, walks, okay, there throughout the country, so obviously it will cause restlessness and it may or say it may cause a delay in the project as well, क्योंकि वो रॉन्ग है, क्योंकि प्रोटेस्ट चल रही है, तो यू विल एंड अप डिलेइंग योर प्रोजेक्ट। तो अगर आपने प्लानिंग की होगी कि यू हैव अ क्वेश्चन एज वेल कि अच्छा यार ये ना आगे प्रोटेस्ट हो रही है, तो हम पहले जैसे एग्जांपल दे रहे हो ना, ताकि जितने दिन अगर दुकानें बंद भी रहेंगी तो वील कीप ऑन यूजिंग दैट। लेकिन ये तब होगा ना जब आपने फ्यूचर में जो होने वाली चीजें हैं उनको पहले से एंटिसिपेट किया हुआ है, प्रिडिक्ट किया हुआ है, अदरवाइज तो ये मुमकिन नहीं है। अच्छा ये पुअर प्लानिंग। फिर आ गया प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन केप्ट चेंजिंग। हाँ प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन कस्टमर चेंज करते जा रहा है, और जिसकी वजह से नाउ एम्प्लॉइज आर कंफ्यूज्ड। ओके दे स्टार्ट द एक्टिविटी इन वन वे एंड देन they actually get the message that now you have to do this activity in a different way. So obviously it will cause a long delay. बार बार जो ये काम करेंगे दोबारा से तो वो टाइम का प्रॉब्लम तो होगा। प्रोजेक्ट टीम टेक्निकली इनकॉम्पिटेंट, यस, they are not able to handle the project well. They are not able to um, meet the budget constraint, or they cannot work within that budget. Similarly resources का वो proper use नहीं कर रहे, there are workers
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अभी you are raising your hand. Are you able to hear me? अभी सर फातिमा अब आ रही है, अभी आपकी चली गई थी आवाज। कितनी देर के लिए गई है? सर आखिरी 2 कोर्सेज के लिए। 2? यस, आखिरी 2 या 3 कोर्सेज के लिए आपकी आवाज चल। पूरे प्लानिंग पे थे आई गेस। अच्छा पुअर प्लानिंग फिर चले गए थे। अच्छा एक मिनट मैं आपको बताता हूँ अभी, जस्ट अ मिनट। अभी ना टुडे एक्चुअली आई एम नॉट वेल, राइट? कि आगे ना नेटवर्क एनालिसिस शुरू होता है, ये हम कल की क्लास में कर लेंगे। आज ना बिकॉज आई एम नॉट वेल, आई हैव अ फीवर, तो आज क्लास को हम जैसे ही सेशन एक्सपायर होगा ना, तो यू डू नॉट नीड टू रीजॉइन। हम अगली क्लास में इसको कवर कर लेंगे। अभी जब तक सेशन चल रहा है तो वी कैन कंटिन्यू, बट एज सुन एज इट एक्सपायर्स यू कैन लीव, नो इश्यूज। सर कॉजेज ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर के आखिरी 2 पॉइंट्स फिर से रिपीट कर दें आप। अच्छा आखिरी 2 पॉइंट वही बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट स्कोप लिखा हुआ आउटडेटेड ड्यू टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको ये बता रहा हूँ कि लेट्स से यू इंस्टॉल अ मशीनरी, okay, and by the time you install that new machinery in your factory, you realize that now a new machinery has been introduced which is far more efficient than this one, and competitors are using it. So now your machinery will be outdated, it will be of no use. Now you have to again install the new machinery, otherwise you will stay uncompetitive in the market. वो शायद ज्यादा efficient है, वो कॉस्ट ज्यादा कम करती है, आपकी कॉस्ट कम होगी नहीं, तो how would you be able to compete with the competitors in terms of price? वो नहीं कर पाएंगे ना आप फिर। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है अगर प्रोजेक्ट ज्यादा टाइम ले ले। अच्छा फिर कस्टमर्स, अगर आप बहुत ज्यादा टाइम ले लेंगे, 6 महीने लगा दिए मशीनरी को इंस्टॉल करने में, कस्टमर्स वर नॉट इन्वॉल्व, so you need to involve customers and tell them the current status of the project. हर एक्टिविटी के बाद बताएं जी ये हो गया, आके चेक कर लें। जैसे मकान बनता है तो कस्टमर आके देखते ही है ना, और वो बताते रहते हैं जी ये ठीक कर लें, ये कर लें, सो दैट एट द एंड कस्टमर मे नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन। क्योंकि एक चीज जब बन गई तो फिर ऑब्जेक्शन से क्या होगा? चीज तो बन गई, पैसे तो लग गए, फिर तो या तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट होगा या फिर